Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So as you have given immense support to the current affairs synopsis series, today I am launching a completely new series that is going to be the topic wise current affairs MCQs. Now these MCQs are from the month of January 2025 to mid December, around 20th December तक इसमें current affairs के MCQs आपको मिलेंगे. Now, the main reason to bring this series is that some of you feel confident in one subject but are not confident in the another subject. So this complete series will cover around 1569 questions जिसमें कि total 12 themes होने वाली है हमारी. Now, the one who is confident in national affairs can watch the international relations and practice those questions. So ये series सबके लिए beneficial है and the questions are of very good quality. When you will see this series, you will feel very much confident and बहुत relevant questions इसमें मैं लेके आया हूँ. थीम 1 में नेशनल अफेयर्स के अराउंड 180 क्वेश्चंस, आईआर के 165, अपॉइंटमेंट्स के 104, स्पोर्ट्स 150, साइंस एंड टेक 150, इकोनॉमी 150, समिट्स 150 एंड इस तरीके से आप इंडेक्स देख सकते हो. ये सारी सीरीज को डिजाइन किया गया है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द नेशनल अफेयर्स के एमसीक्यूज. अराउंड 180 एमसीक्यूज हैं, ये सारे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. नाउ आप लोगों में से बहुत लोगों का कहना था कि द प्राइस ऑफ द करंट अफेयर सिनॉप्सिस सीरीज इज प्रीटी मच हाई. सो दिस सीरीज, as you have supported me a lot, this particular PDF is available just for ₹29 and it is worth it. I can guarantee you that. Okay. So if you don't want the PDF, you can see the lectures. Lectures सारे complete होंगे. Complete 1569 questions. ये सारे questions इस series में complete होंगे. So if you are practicing for AEDO or any other one-day examinations, you are going to get benefited a lot. So let us start with our today's session. In the today's video, we are going to cover the national affairs. Now, let us start with the first question. In which city the Rashtrapati Tapovan and Rashtrapati Niketan have been inaugurated by the president? Now, this has been inaugurated in Dehradun. Now, this is a unique sanctuary for the purposes of meditation, etc. and it is spread across 19 acres. अब meditation day is celebrated. ये भी आपको पता होना चाहिए. लास्ट ईयर द मेडिटेशन डे वॉज अनाउंस्ड. कब अनाउंस हुआ था? तो 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे वॉज अनाउंस. तो ये डे भी आप याद रखेंगे. हालांकि वी विल कवर दिस इन दी इंपॉर्टेंट डेज वाला चैप्टर. नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 टू restrict the teaching hours and ban false advertising. So this is the Rajasthan government that has introduced this bill. Now this bill is to regulate the coaching industry, restricting the teaching to 5 hours a day and banning the false advertising. Next is under the One Nation One Time initiative, India plans to replace reliance on the foreign GPS with which indigenous system for time synchronization, and this question is very much important. Now ये जो GPS है, this belongs to the United States of America, ठीक है. But India ने recently launch किया है Navik, which is going to be integrated and which is going to replace the GPS. Now the foreign GPS satellite will be replaced with the indigenous Navik system for the synchronization with the One Nation One Time. Now the prime meridian that passes through India passes through the Mirzapur. Mirzapur is in Uttar Pradesh. ये static point है, ये भी आपको पता होना चाहिए. Next question is which state declared itself as the first fully digitally literate state following the Digi Kerala campaign? So यहाँ से दो questions आपके solve हो गए. Digi Kerala campaign is related to the digital literacy and Kerala has launched this Digi Kerala campaign. Who is the CM of Kerala? CM Pinarayi Vijayan is the CM of Kerala, and this initiative, Digi Kerala initiative, is going to cover the 99.98% coverage across the 83 lakh households. Next is अभी judgments के regarding question आ जाते हैं. So this one is an important one. The Supreme Court recently stayed the Enforcement Directorate's investigation into which state run a liquor retailer citing the jurisdictional overreach. अब यहाँ पे ED is important. Establish कब हुआ था? 1956 में हुआ था. ओके. अब सुप्रीम कोर्ट ने
स्टे लगाया था डिसीजन में, कौन सा स्टेट के लिक्विड रिटेलर के अगेंस्ट में, सो दिस वाज द टैस्मैक ऑफ तमिलनाडु। ओके, बेसिस क्या था टू स्टे द डिसीजन, टू गेट अ स्टे, दैट penalizing a state entity requires a clear legal basis. Okay, next is, which Indian state inaugurated the country's first digital nomad village equipped with high speed internet and co-working spaces? So this is the Sikkim. First digital nomad village is in Sikkim. कौन सी जगह पे? तो this is the Yaktin village. Okay, and this has been announced under the Nomads Sikkim initiative. Next is, which massive infrastructure project did PM Modi inaugurate in June 2025, described as the world's highest railway arc bridge? So this is the Chenab Rail Bridge. Okay, अब यहाँ पे one fact you need to know that the world's highest railway arc bridge is the Chenab Bill. On the other hand, अंजी घाट ब्रिज इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज। ये दोनों डिफरेंट हैं, इनको मर्ज मत करना, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहां से बना सकते हैं एग्जामिनर्स। ओके, केबल स्टेट हाईएस्ट आर्क ब्रिज की बात करूं, सो दिस इज द चेनाब ब्रिज। अगर मैं केबल स्टेट ब्रिज की बात करूं फर्स्ट, तो दिस इज द अंजी घाट ब्रिज। एंड बिकॉज ऑफ दिस चेनाब रेल ब्रिज, द श्रीनगर हैज बीन कनेक्टेड टू द श्री माता वैष्णो देवी कटरा। Okay, next is, the union government approved the one nation one port process to standardize operations in which sector? So ONOP, that is the one nation one port. अब ports की बात करें, so obviously it will be related to maritime. अब important यहाँ पे information आपकी ये है कि मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स कौन है अभी, तो सर्बानंदा सोनोवाल इज द मिनिस्टर। एंड इन एडिशन टू दैट, एक स्टैटिक पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जो अगर मैं बात करूं मेजर पोर्ट्स की, मेजर पोर्ट्स विच इज अराउंड 12 इन आवर कंट्री, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मैं बात करूं माइनर पोर्ट्स की, तो दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ये स्टैटिक पॉइंट है, पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्सो एक बात और यहाँ पे फैक्ट ध्यान रखना है, ये सारा एक्सप्लेनेशन पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो सागरमाला प्रोजेक्ट इज ऑल्सो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। इन एडिशन टू दैट, भारतमाला प्रोजेक्ट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड हाईवेज। पर्वतमाला प्रोजेक्ट, ये किससे एसोसिएटेड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट इज, which state government passed the Urban Maoism Bill, Special Public Security Bill 2024 to target the left-wing extremism in cities? So, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब आपको ये लग सकता है यहाँ पे ऑप्शंस में मैंने कुछ ईस्टर्न स्टेट्स का नाम लिखा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि छत्तीसगढ़, बस्तर रीजन इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और द माओइस्ट एक्टिविटीज, सो आप इसको टिक कर सकते हो। बट डू रिमेंबर दिस बिल इज टारगेटेड फॉर एक्सट्रीमिज्म इन सिटीज, सो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, नाउ रिसेंटली महाराष्ट्र ने कार्नेक ब्रिज है विच इज इन मुंबई आई गेस, कार्नेक ब्रिज का नाम यहाँ पे चेंज करके सिंदूर ब्रिज रखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड द फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी हैज ऑल्सो बिन इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र ओनली। फर्स्ट AI स्कूल की मैं बात करूं तो फर्स्ट AI स्कूल हमारा केरला में इनॉग्रेट हुआ था। ओके, इन एडिशन टू दैट ओडिशा की मैं बात करूं तो 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस ये ओडिशा में ही हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ हिस्टोरिक मूव द इंडियन आर्मी ऑथराइज्ड द मोबिलाइजेशन ऑफ व्हिच फोर्स फॉर एक्टिव ड्यूटी अमिड बॉर्डर टेंशंस इन May 2025? सो दिस वाज द टेरिटोरियल आर्मी। अभी क्या इसके पीछे का लॉजिक है? सो गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ टू मोबिलाइज द टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल्स फॉर एक्टिव ड्यूटी अंडर द रूल 33 ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी रूल्स 1948। सो टेरिटोरियल आर्मी के रिगार्डिंग जितने भी पावर्स हैं, जितने भी रूल मेकिंग पावर्स हैं, इट इज देयर विद द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ।
Next is which organization released the Children in the India 2025 report highlighting a decline in the infant mortality. अब चिल्ड्रन इन इंडिया है, सो आपको लग सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड होगा, आप गलत हो गए. आपको लग सकता है यूनिसेफ होगा, आप फिर भी गलत हो गए. यहाँ पे दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, दैट इज वाई मैंने इसको नेशनल अफेयर्स में काउंट किया है. एंड दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ओके, दिस रिलीज्ड इन द चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट. एंड इसमें क्या हाईलाइट किया था कि देयर इज अ डिक्लाइन इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. अब इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब है द न्यू बॉर्न आर डाइंग लेस. इट मीन्स दैट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्प्रूविंग. ऑल्सो द केयर or the nourishment of the child is also improving to a certain extent. So this is also important. Next is the Indian Navy commissioned its first indigenous diving support vessel DSV named. So this is the INS Nistar. Important hai because this is the first in India and it is also the indigenous one. So Indian Navy commissioned INS Nistar, India's first indigenously designed and built डाइविंग सपोर्ट वेसल. एंड इंडक्ट कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में. नेक्स्ट देखते हैं. विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द आधार बेस्ड फेशियल ऑथेंटिकेशन फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन डिस्ट्रीब्यूशन? दिस इज हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट देखते हैं. What is the new name of the town Jalalabad in Uttar Pradesh as approved by the Ministry of Home Affairs? So this is the Parshuram-Puri. अब दिस इज सिचुएटेड इन द शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो नेम चेंज होता है ना, नेम चेंज ऑफ एनी प्लेस, दिस इज अल्टीमेटली अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. यहाँ से आपको ये चीज डिराइव कर लेनी है. क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं घुमा के. ओके, the approving of the thing is done by the Ministry of Home Affairs of the changing the names. Which Indian state has been declared the country's first extreme poverty-free state? This is Kerala. And this was achieved under the Nav Kerala mission. Now the Union Cabinet approved the establishment of a regional center of the International Potato Center in which city? So this was in Agra. Now ये ध्यान में रखना, अभी UPPSC का पेपर हुआ था 2025 में अक्टूबर के अराउंड, उसमें ये क्वेश्चन आया था. एंड इट वॉज ऑल्सो कवर्ड. उसके पहले मैंने जो आपको करंट अफेयर्स करवाया था ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 MCQs, उसमें क्वेश्चन कवर था. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द 2025 एशियाटिक लायन सेंसस द पॉपुलेशंस ऑफ लायन इन गुजरात हैव रिजन टू. सो द पॉपुलेशन इज नाउ 891. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एशियाटिक लायंस हैं ये इनका नेचुरल हैबिटेट इज फाउंड इन द गिर नेशनल पार्क एंड दिस इज इन गुजरात. एंड इनका IUCN स्टेटस भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वल्नरेबल. सो 32% इंक्रीज देखा गया है सिंस 2020. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू कैन हैव अ सर्टेन ग्लैंस एट दिस फैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट अनाउंस द क्रिएशन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क इन द अरावली हिल्स? अभी द मैटर ऑफ अरावली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए. सो आपके लिए ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके साथ यू नीड टू नो दैट अरावली कौन कौन से स्टेट्स में स्पैन करता है. ओके, सो ये जो एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क है, दिस इज गोइंग टू बी क्रिएटेड इन हरियाणा. ओके, अराउंड 10,000 एकर्स में ये जंगल सफारी पार्क विल बी इनॉग्रेटेड. अरावलीज की बात करें तो इट इज स्प्रेड इन 4 स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली. अब गुरु शिखर की मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए द गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक. दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली. ओके, next is what is the name of the AI news anchor introduced by Assam to deliver news in Assamese? So this is Ankita. Okay, next is the Supreme Court declared the digital access as a fundamental right under which article? very important question. ये क्वेश्चन आने वाला है स्टेट PSC में तो आएगा ही आएगा, किसी चाहे जिस भी एग्जाम में आ जाए. ओके, सो डिजिटल एक्सेस इज a fundamental right under article 21. आर्टिकल 19 में क्या है? राइट टू फ्रीडम.
एंड राइट टू फ्रीडम में डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स हैं हमारे, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके बाद राइट टू मूव एनीवेयर विद इन द कंट्री, प्रोफेशन का राइट है, रेसिडेंस है, ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड इसी के अंडर दिस डिजिटल एक्सेस का राइट है. ऑल्सो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. राइट टू प्राइवेसी भी आप याद रखना. नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द 20% horizontal reservation for ex-Agniveers in police recruitment. So this has been done by the Uttar Pradesh government. Again a very very important question. India plans to launch its first manned deep ocean mission Samudrayan by which year? So by 2026 this is going to be launched. Okay, this Matsya 6000, this is also a deep diving vessel जो कि लॉन्च होने वाला है. दिस मत्स्य मीन्स फिश, एंड फिश से आप रिलेट इसको कर सकते हो कि ये वाटर या ओशन से ही रिलेटेड होगा. सो जहां पे भी आपको ये आ जाए लिखा हुआ कि मत्स्य 6000 इज रिलेटेड टू व्हाट, सो इट इज रिलेटेड टू द डीप सी एक्सप्लोरेशन. Which Indian railway station became the first private station in Uttar Pradesh? This is the Gomti Nagar railway station. एंड अगर मैं फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया की बात करूं, सो दिस इज द रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन मध्य प्रदेश. द गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू रिप्लेस द इंडियन साइंस कांग्रेस विथ विच न्यू इवेंट? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो एमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, ESTIC से रिप्लेस किया जाने वाला है इंडियन साइंस कांग्रेस को. Next is which state inaugurated the Namo Bharat Rapid Rail enhancing the connectivity in Mithilanchal? So Mithilanchal is particularly an area in Bihar. So ये Namo Bharat Rapid Rail अभी recently prior to the Bihar elections this was launched in the Mithilanchal region of Bihar. This is important for those who are preparing for the AEDO examination. Okay, बाकियों के लिए इतना important नहीं है ये. Next देखते हैं. The BRO, that the Border Roads Organization, constructed the world's highest motorable road at 19,400 feet in Eastern Ladakh. अभी ये तो इम्पोर्टेंट है कि लद्दाख में, क्वेश्चन सब ये नहीं पूछेंगे आपसे कि वो लद्दाख में है, हिमाचल में, किधर है. आपसे पूछेंगे कौन से पार्ट में है, तो ईस्टर्न लद्दाख में है. एंड दिस इज अंडर प्रोजेक्ट हिमांक. सो ये प्रोजेक्ट हिमांक भी आप ध्यान में रखना. Next is India's literacy rate in 2023-24 has risen to what percentage according to the Union Education Minister? So India का literacy rate is 80.9%. 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितना था? 74% था, एंड इन 2023-24 ये बढ़ के 80.9% हो गया. Next is the 16th Finance Commission has been constituted under whose chairmanship? This was Arvind Pangaria. Now this finance commission is mentioned under article 280 of the constitution. Who appoints this finance commission? तो president appoint करते हैं finance commission, and जितनी भी recommendations देते हैं this is advisory in nature, not binding होती है. मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने recommendation दी है तो वो government को करना ही पड़ेगा. ठीक है, the recommendations are considered as advisory, and इन्हीं के चेयरमैन अभी बनाए गए हैं Arvind Pangaria. Next is which state passed the misinformation and fake news prohibition bill? This is Karnataka. अभी false education के regarding जो false news या false data या false information का जो बिल था वो राजस्थान ने पास किया था against the coaching centers. Misinformation and fake news के against कर्नाटका गवर्नमेंट ने बिल पास किया है, एंड इस बिल में क्रिमिनलाइज किया गया है किसे? तो द स्प्रेड ऑफ फॉल्स कंटेंट को पिनलाइज किया एंड क्रिमिनलाइज किया गया है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स? सो द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इज डॉक्टर DY चंद्रचूड़. अभी व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स is by DY Chandrachud, and Why Bharat Matters is a book by S. Jaishankar. Important है, कंफ्यूज मत होना. अभी कॉन्स्टिट्यूशन है तो ऑब्वियसली जो जुडिशियरी से रिलेटेड होंगे उन्होंने लिखा होगा,
D.Y. Chandrachud has been the Chief Justice of the country. So ये book उन्होंने लिखी. And Why Bharat Matters is written by the Foreign Minister of India, Dr. S. Jaishankar. Next is the Supreme Court relaxed the norms for appointing the ad hoc judges in the high courts under which article? Now, ad hoc judges के बारे में the appointment is given under article 224A. So this is an important question regarding the political developments. Next is which tiger reserve in India ranks third globally in tiger density? So this is the Kaziranga National Park. Kaziranga Tiger Reserve in Assam ranks the third globally in tiger density at 18.65 tigers per 100 kilometers. Next is what is the objective of the Shrestha framework launched by the Health Ministry? So this is the to benchmark the state drug regulators. अब श्रेष्ठ ये तो इम्पोर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव क्या है. इसके एडिशनल यू ऑल्सो नीड टू नो द फुल फॉर्म ऑफ द श्रेष्ठ. सो विच इज द स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंसी इंडेक्स. Which state accepted the caste survey report, that is the socio-economic and educational survey in April 2025? कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था. नेक्स्ट इज PM Modi inaugurated the 38th national games in the उत्तराखंड. मैस्कॉट क्या था 38th national game का? This was Molly. Next is which state become the first to join the Cruise Bharat mission? This is the Gujarat. Okay. इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, सो इसको भी आप ध्यान में रखना. द वन बिग ब्यूटिफुल बिल एक्ट पास्ड ऑन बाय द यूएस कांग्रेस इम्पोज्ड अ 1% टैक्स ऑन व्हाट? सो रेमिटेंसेस. जो पीपल इंडिया के या किसी भी कंट्री के यूएसए में रहते हैं एंड दीज पीपल सेंड द मनी बैक टू देयर ओन कंट्री, दीज थिंग्स आर नोन एज द रेमिटेंसेस. सो जो वो पैसा भेजेंगे ना उस पर 1% टैक्स लगाने का प्रपोजल है इस बिल में. ओके. And this is going to be effective from 1st January 2026. So this question is again important. Which Indian city was nominated for the UNESCO City of Gastronomy tag in June 2025? Now, nomination एक अलग बात होती है, but to win it is a different thing. So ये question इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि लखनऊ ने जीता है. Okay? लखनऊ has won the UNESCO's City of Gastronomy. India's first open-air art world museum was inaugurated at which institution's headquarters? So, IMD. Okay. India's first open art world museum inaugurated at Mausam Bhavan. And ये open किया गया है to celebrate 150 years of IMD. Next is which state declared the Sarvajanik Ganeshotsav as the state festival? Again an important question. This is Maharashtra. Next है the Supreme Court ruled that the private companies like NBFCs are not subject to which type of jurisdiction? So this is the writ jurisdiction. अभी writ jurisdiction क्या है? So this is the right to constitutional remedy which is mentioned under Article 32 of the Constitution, जिसमें 5 types of writs can be issued. कौन कौन से हैं? Habeas corpus, certiorari, prohibition, quo warranto. Okay, these are some of the writs. And writs का जो jurisdiction होता है ना, ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो रिट का जुरिस्डिक्शन है, दिस इज मेंशन अंडर आर्टिकल 32. एंड हाई कोर्ट के पास भी रिट्स का जुरिस्डिक्शन है. अब हाई कोर्ट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ओके. नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी इज सेट टू ओपन इन विच स्टेट? सो ये महाराष्ट्र में ओपन होने वाली है, मैंने आपको बता ही दिया था. नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Now, which operation was launched by India to provide relief during the 2025 Myanmar earthquake? This was the Operation Brahma. 7.7 मैग्नीट्यूड का earthquake आया था म्यांमार में, so Operation Brahma was launched by India. अभी 8.8 मैग्नीट्यूड का एक earthquake आया था at the Kamakacha Plateau. Kamakacha Plateau. अब ये Kamakacha Plateau, this is situated in Russia. So ये भी आपको पता होना चाहिए. Next is who has been appointed as the 52nd Chief Justice of India? This is Justice B.R. Gavai. Okay, अब important point यहाँ पे ये है कि 52 के अब तो 53rd भी अपॉइंट हो गए नवंबर में. This is Justice सूर्यकांत.
इंपॉर्टेंट है। ओके, सो 52nd भी याद रखना, 53rd भी याद रखना, कोई भी पूछ सकते हैं, वो कंफ्यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, वो 52nd पूछ लेंगे, आपको लगेगा तो रिसेंट वाला ही पूछा होगा, आप जस्टिस सूर्यकांत मार्क करके आओगे तो गलत हो जाएगा वहां पे। ठीक है, उनके पहले जस्टिस संजीव खन्ना थे, तो 51st भी यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज, एंड अपॉइंट कौन करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Which Indian state approved a bill to ban fake news with prison terms up to 7 years? This is Karnataka. Next देखते हैं, which entity launched the Sabha Sar, an AI tool for Gram Sabha? Very important question. So this is the Ministry of Panchayati Raj. Now this Sabha Sar is an AI powered tool to transcribe and translate the Gram Sabha recordings. And ये Gram Sabha जो है ना, this is a constitutional body. कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो भाई पंचायत आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, पंचायत में 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द ग्राम पंचायत, दैट इज द पंचायती समिति एंड दैट इज द 3rd लेवल ऑफ द पंचायत। अब पंचायत जो हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मिला था, एंड म्यूनिसिपैलिटीज जो हैं इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे मैं आपको स्टैटिक भी कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन के साथ रिवाइज करवा दूं ताकि आपका एक बहुत बेटर होल्ड बन जाए। नेक्स्ट देखते हैं, द जन विश्वास बिल 2025 एम्स टू डू व्हाट? सो इट एम्स टू डीक्रिमिनलाइज द माइनर ऑफेंसेस इन 16 सेंट्रल एक्ट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपका। ओके, The Jan Vishwas Bill amends 355 provisions across the 16th Central Act, decriminalizing 288 provisions for citizens' ease. Next is, India's first animal stem cell biobank was inaugurated in which city? So ये हैदराबाद में inaugurate हुआ था। inaugurate किन्होंने किया था? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। inaugurate कहाँ हुआ था? NIAB हैदराबाद। Which state introduced the one state one registration policy for the property documents? This is Maharashtra. Again this is an important question, so इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। Who became the first woman 8-day camp ADC to the President of India? Very important question. This is Yashaswi Solanki, Lieutenant Commander Yashaswi Solanki. Which Indian state has the highest number of Ramsar sites as of December 2025? So Tamil Nadu has the highest number of Ramsar sites. Recently Dhanushkodi lagoon को डिक्लेयर किया था एज अ रामसर साइट। ठीक है, तमिलनाडु की 20 है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे तो क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम्स में। तो दिस इज the Gyan Bharatam mission launched by PM Modi. It focuses on the digitizing and conserving the manuscripts. Very important question. Next देखते हैं, which state became the first to impanel sign language experts under the Juvenile Justice Act? This is again an important question. Punjab government has done this. Next is, India's first semiconductor innovation museum was opened in Bengaluru. ठीक है, नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू सेफगार्ड द अमरनाथ यात्रा 2025? दिस वाज ऑपरेशन शिवा। नाउ यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ऑपरेशन शिवा एंड ऑपरेशन महादेव में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऑपरेशन शिवा इज रिलेटेड टू सेफगार्डिंग द अमरनाथ यात्रा, वेयर एज ऑपरेशन महादेव was for killing the terrorists that were involved in the Pahalgam attacks. 3 terrorists were involved in the Pahalgam attacks. तो ये ऑपरेशन महादेव उनको एलिमिनेट करने के लिए था। एंड पहलगाम अटैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, 22 अप्रैल को दीज ट्रैजिक इंसिडेंट हैपेंड। एंड इसी टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो है यूएसए के, दैट इज जेडी वैंस, ही केम टू इंडिया विथ हिज फैमिली। नेक्स्ट इज, which state announced the Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana, granting 10,000 to 1 woman per household? This is Bihar government ने लॉन्च किया था। Now, the Pasang Wangchuk Sona ISRO Space Laboratory was inaugurated in Arunachal Pradesh. Important है ये। Okay,
Next is, which Indian brand became the first to surpass the $30 billion valuation mark? This is the Tata Group. Now the Green Credit Program revised the rules to grant credit for tree plantation only after verification of how many years? So after the re-verification 5 years. The Ministry of Environment Forest revised the methodology to grant credits only after 5 years of verified restoration. पहले ये जो लिमिट थी that was of 2 years, अब बढ़ा के 5 years कर दिया. Next is, the government has capped the Manrega expenditure at what percentage of the annual budget for the first half? So Manrega का जो expenditure है उसको cap करके 60% पे कर दिया. The Finance Ministry capped the Manrega expenditure at 60% of the 86,000 crore annual budget. अब important point क्यों है, ये question मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि recently विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 रिप्लेस करने वाला है मनरेगा को with a new statutory framework that is aligned with the विकसित भारत initiative of 2047. विकसित भारत at 2047 का टारगेट है हमारा, तो इसी टारगेट को अचीव करने के लिए मनरेगा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय विकसित भारत जी राम जी बिल. Which city was declared India's leopard capital based on a 2024-25 survey? This is Bengaluru. Next, India's first floating solar power plant in a refinery was inaugurated at the Kochi refinery, and this is important. And कौन सी कंपनी ने ये लॉन्च किया था? तो BPCL ने इनॉग्रेट किया. Next is, who won the 2025 Pen Pinter Prize? This is लीला अबुलेला. एंड लीला अबुलेला सिर्फ यही आपको नहीं जानना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ही इज अ सुडानी स्कॉटिश ऑथर. नेक्स्ट इज, विच स्टेट लॉन्च द बायो हैप्पीनेस सेंटर टू सेलिब्रेट MS स्वामीनाथन लीगेसी? दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. करेक्ट आंसर हमारा महाराष्ट्र है. नाउ द घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट इज, what is the name of the new high-speed rail service inaugurated between Jayanagar and Patna? So this is the Namo Bharat Rapid Rail. Next is, PM Modi inaugurated the Namo Bharat train connecting from Jayanagar to Patna. Now, अब अगर मैं बात करूं, so ये हाई स्पीड सर्विस है, दैट इज द नमो भारत रैपिड रेल. ओके, अगर मैं बात करूं नमो भारत की, तो नमो भारत सिर्फ इट इज इंडियाज फर्स्ट RRTS, दैट इज द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि NCR में लॉन्च हुआ है एंड ये कनेक्ट करेगा दिल्ली को मेरठ से. सो दिस इज द नमो भारत, एंड नमो भारत रैपिड रेल इज एन इंटरसिटी कनेक्टिंग सर्विस ऑफ द रेलवेज. नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन है? तो which constitutional amendment bill proposes the automatic removal of ministers detained for 30 days or more? So this is the 130th amendment bill. The 130th amendment bill proposes the removal of minister detained for 30 or more days. Clear है? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Who became the first Indian to receive the Ramsar Award for wetland wise use? This is an important question. Correct answer is Jayashree Venkatesan. Next is, the Sagar Ankalan guidelines were launched to benchmark the performance in which sector? Very very important. तो सागर है तो पता हो जाना चाहिए, दिस इज रिलेटेड टू पोर्ट एफिशिएंसी. ओके, इट इंक्लूड्स द लॉजिस्टिक्स पोर्ट्स परफॉर्मेंस टू benchmark the port efficiency. Which state declared the Kanjur Marg land as a protected forest? This is again an important question. So this Kanjur Marg land is situated in Maharashtra, Mumbai. India's first cooperative run CBG and potash project, it was inaugurated in Maharashtra. महाराष्ट्र में भी कहाँ? कोपरगांव महाराष्ट्र. एंड ये इनॉग्रेट किन्होंने किया था? अमित शाह ने. Which Indian state has the highest share of front runner districts in the NER, that is North Eastern Region Sustainable Development Index?
सो मिजोरम इज द फ्रंट रनर। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि दिस SDG, दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, दिस इज लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग। डन है। यहाँ पे सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, these achieve the front runners, but Mizoram has been ranked the highest. The Prithvi Vigyan scheme is associated with which ministry? So Ministry of Earth and Sciences. Okay. And Prithvi Vigyan is the umbrella scheme of the Ministry of Earth and Sciences. Next is a very, very important question. This is, which tunnel on the Rishikesh-Karnaprayag line became the longest transport tunnel in India upon breakthrough? This is the tunnel number 8. And this tunnel number 8 की length है 14.57 kilometer, and this is between Devprayag and Janasu. And it has become the longest transport tunnel in India. Important है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे. नेक्स्ट देखते हैं. Who was appointed as the chairman of the 16th Finance Commission? This is Dr. Arvind Pangaria. India's first underwater museum is being built using which decommissioned ship? Very, very important. So this is INS Guldar. And INS Guldar इसको कमीशन कहाँ किया गया है? कमीशन किया गया है महाराष्ट्र में. The Viksit Bharat at 2047 initiative is primarily driven by which body? So this is primarily driven by the नीति आयोग. Okay. Important है, ये ध्यान में रखना, बहुत जगह आपने सुना होगा विकसित भारत, तो कंफ्यूज मत होना, नीति आयोग का इनिशिएटिव है. Next is, which state launched the Mahila Samman scheme providing 2100 to unemployed women? So महिला रोजगार योजना जो है ना, वो बिहार ने लॉन्च किया है, जिसमें 10,000 रुपीज मिलेंगे. इसमें महिला सम्मान योजना has been started by the Delhi government. Next is, the Kavach 4.0 safety system was commissioned on which railway section? Very, very important question. अब आपको ये तो पता होगा कि जो ये कवच सिस्टम है, this is related to, this is a train collision prevention system of the Indian Railways, and ये मथुरा एंड कोटा के सेक्शन में कमीशन किया गया रिसेंटली. And this works on the radio frequency, that is RFID technology. This is the same technology that is used in the FASTags. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. Which state inaugurated the country's longest wildlife overpass corridor? This is a very important question. So ये महाराष्ट्र में इनॉग्रेट हुआ था. अब ये कौन सा कॉरिडोर है? दिस इज द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एंड रणथंबोर टाइगर रिजर्व है. इसके बफर जोन से ये पास करता है, विच इज लोकेटेड इन राजस्थान. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ द बंकर-चेरला प्रोजेक्ट sparked a water dispute between Andhra Pradesh and Telangana. So this Banker-Chedla project, this is between Andhra and Telangana. Next is, which organization developed the FEAST software for structural analysis? This is very, very important. So ये FEAST software, this has been developed by the ISRO, VSSC. Now, who is the author of the book, The Great Conciliator, a book on Lal Bahadur Shastri? This is Sanjeev Chopra. Next is, PM Asha scheme was extended to support farmers until, अभी PM आशा स्कीम को लॉन्च किया गया है एंड इसको कंटिन्यू किया जाएगा 2025-26 तक. नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च द दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्कीम को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट. एंड द स्कीम बेसिकली फोकस ऑन द लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Now, a 58-foot tall statue of Potti Shri Ramulu was announced in Amravati. ठीक है, आंध्र प्रदेश अमरावती में अनाउंस किया गया है स्टैचू को. क्लियर है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which state has launched the सशक्त बेटी प्रोजेक्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो दिल्ली में ये लॉन्च हुआ है. Next is, who won the Best Actor award at the 71st National Film Awards? This is Shah Rukh Khan and Vikrant Massey. Shah Rukh Khan for his film Jawan and Vikrant Massey for 12th Fail.
Now the Global Biofuel Alliance was joined by which African nation during the PM Modi visit? ये important question हो सकता है. So Namibia ने recently join किया था. Next is which entity launched the Niveshak Didi initiative to boost financial literacy among women? So this is the IEPFA with the Indian Post Payment Bank. ठीक है, important है, इसको ध्यान में रखना. A very very important question. The New Delhi Declaration adopted in September 2025, it focused on the manuscript heritage. बहुत important question है ये. ठीक है, ये question पूछ सकते हैं आपसे. Now the New Delhi Declaration on manuscript heritage was adopted at the Gyan Bharatam conference. Next is which state topped the category A in the State Mining Readiness Index? So ये मध्य प्रदेश है. And ये State Mining Readiness Index, this is released by the Ministry of Mines. Again a very important question. India's first gene edited sheep was developed in Kashmir, Squaset में. ठीक है, this is South Asia's first gene edited sheep. Next देखते हैं. Which company launched India's first private helicopter assembly line? This is again important. So ये टाटा एडवांस सिस्टम डेट इज TASL ने लॉन्च किया है. एंड कहां पे लॉन्च किया है? कर्नाटका में. अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द GSLV F-15 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च्ड विद सैटेलाइट. सो दिस सक्सेसफुली लॉन्च द NVS-02. नेक्स्ट इज हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड? दिस इज आलोक जोशी. Alok Joshi is also the former RAW chief. Next is which Indian city was selected to host the 2027 ISSF World Cup? New Delhi. This is important. Next है the Bairabi Sairang Railway project connects which state capital with the national network? So मिजोरम के ऐजवाल को कनेक्ट किया है. ठीक है. And अभी 19th या 20th राजधानी एक्सप्रेस of the Indian Railways has also been started from New Delhi to Aizawl. Aizawl मतलब यहाँ पे सारंग. Now which state hosted the Sunrise Festival to boost the border tourism? This is Arunachal Pradesh. Important है, आप नाम से भी डिराइव कर सकते हो. सनराइज सबसे पहले कहाँ करता है? तो अरुणाचल प्रदेश में करता है. तो वहां से भी आप डिराइव कर सकते हो आंसर. एंड कौन सा विलेज है? दिस इज द डोंग विलेज. नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2025 रिपोर्ट नोटेड दैट इंडिया लॉस्ट हाउ मेनी टाइम्स मोर फॉरेस्ट देन इट गेन बिटवीन 2025 to 19. सो 18 टाइम्स इंडिया ने फॉरेस्ट अपने लूज किए हैं. Next is the government of India launched the One Nation One Subscription initiative to provide seamless access to what? So seamless access to digital knowledge sources. Okay, One Nation One Subscription to provide seamless access to a wide range of digital knowledge resources, including the research papers, journals under a single platform. Now the Ministry of Defense decided to observe the year 2025 as the year of reforms. ये क्वेश्चन UPSC के CDS में आया था इस बार. UPS CDS 2025 में क्वेश्चन आया था. एंड ये भी मैंने पहले करवाया हुआ है करंट अफेयर्स के उसमें सेशंस में. नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना टू प्रोवाइड अ मंथली ऑनरोरियम टू प्रीस्ट्स. दिस हैज बीन अनाउंस्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट. 18,000 monthly payment will be given to Hindu and Sikh priests. Next is an important question. Question है हमारा. The project Vistar aimed at empowering farmers through a digitization is a partnership between the Ministry of Agriculture and IIT Madras. सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बना. Project Vistar is aimed to empower the farmers through digitization. Next है किनके डेवलपमेंट से? तो किनके कोलैबोरेशन से? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज देयर एंड IIT मद्रास इज देयर.
नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर्स वाज लॉन्च्ड अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इन विच स्टेट? सो ये सिक्किम में लॉन्च हुआ था। ओके, लॉन्च किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन द सोरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। Now, the mission Mosam, aimed at making India a weather-ready and a climate-smart nation, was launched on the 150th Foundation Day. अब ये हमने पहले डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था IMD का रिसेंटली 150th Foundation Day was celebrated. So obviously इन्हीं के उस पे किया गया होगा। Next is which state topped the inaugural Fiscal Health Index 2025 released by नीति आयोग? So ओडिशा ने टॉप किया था and it is important. ये भी आपको पता होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग रिलीज करता है एंड कौन से स्टेट ने टॉप किया है? तो ओडिशा ने टॉप किया। नेक्स्ट इज द टीम इनिशिएटिव दैट इज द ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग with a budget of 277 crores aim to connect the MSMEs with the ONDC network. ठीक है, नेक्स्ट है which company became the first in India to develop hydrogen compliant pipes for transporting hydrogen? This is Tata Steel. Okay, specifically for hydrogen के लिए ये pipes को बनाया गया है। Again a very very important question. The Union Cabinet approved a bill to ratify the Cape Town Convention to strengthen which sector? So ये आपसे पूछ सकते हैं, the Cape Town Convention is related to what? It is related to aircraft leasing. Okay, strengthen the aircraft leasing activities and allow the lessors, मतलब जो दे रहा है, to claim the aircraft in case of default. एयरक्राफ्ट पे क्लेम भी इनका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The 12th All India Pension Adalat aimed at resolving the long pending pension cases was chaired by, so it was chaired by Dr. Jitendra Singh. इसके अलावा you should know pensions का जो सेक्टर है it is regulated in India by the PFRDA, 2013 में बना था। ठीक है, सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंश्योरेंस की बात करें, सो द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इट इज regulated by the IRDAI. ओके, अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है एंड मनी सप्लाई एंड फॉरेन एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फॉरेन एक्सचेंज की रेगुलेशन का काम आरबीआई का है एंड आरबीआई इज ऑल्सो नोन एज द बैंकर टू द बैंक्स। सो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इज the government plans to amend the Civil Liability for Nuclear Damages Act primarily to address the supplier liability concerns to unlock the foreign projects. So ये एक्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज the Kosi Mechi intra-state link project recently approved aimed to divert the surplus water to which basin? तो महानंदा रिवर पे ये वाटर को डाइवर्ट करने का यहाँ पे प्लान है। कोसी रिवर इज इन बिहार एंड आपको पता ही होगा इट इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। ठीक है, अगर मैं बात करूं दामोदर रिवर की, सो दिस दामोदर रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल। गंडक, सोन, ये जितनी भी रिवर्स हैं सब प्राइमरली बिहार में फ्लो करती हैं। महानंदा इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर दैट फ्लोज इन बिहार, तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। और महानंदा रिवर का ओरिजिन कहाँ है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द दार्जिलिंग हिल्स इन वेस्ट बंगाल। अगर मैं बात करूँ तीस्ता रिवर का, तो तीस्ता रिवर का ओरिजिन सिक्किम में है। ओके, नेक्स्ट इज विच चिली वैरायटी फ्रॉम तेलंगाना रिसेंटली रिसीव द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? तो जीआई टैग वारंगल की चटपटा चिली को अभी जीआई टैग मिला है। इन एडिशन टू दैट घरचोला is an popular GI tag जिसको मिला है, it is from the state of Gujarat. Feni of Goa, virgin coconut oil of Andaman. These are some of the important GI tag जो इस साल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, the Warangal Chatpata chili, this is also known as tomato chili
and it has become the 18th product from Telangana to receive the GI tag. Next is Kanna Dippaya, a traditional tribal handicraft awarded a GI tag, is a type of, this is a bamboo mat. ओके एंड ये कन्ना पाडिया ये कौन से रीजन का जीआई टैग है? सो केरला स्टेट को जीआई टैग मिला है. इट इज़ मेड फ्रॉम द रीड बैम्बू बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ केरला. अब ट्राइब्स की बात करें तो द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया हमारे मध्य प्रदेश में है, जिसमें कि भील्स आर इन द लार्जेस्ट नंबर. भील्स के बाद है गोंड. द गोंड ट्राइब इज एट द सेकेंड पोजीशन. अगर मैं ट्राइब्स के ही बारे में बात करूं तो यहाँ पे PVTGs आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. तो इनकी अगर मैं संख्या की बात करूं तो दीज आर 75, टोटल 75 PVTGs आर देयर. एंड अगर ट्राइब्स की बात हुई है तो 2024 का एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि अंडमान एंड निकोबार की शोम्पेन ट्राइब है. दीज हैव बिकम द फर्स्ट ट्राइब हु हैज़ गॉट द राइट टू वोट. वोटिंग की थी इन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में. सो शोम्पेन ट्राइब ऑफ अंडमान यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक climate research station was inaugurated in Udhampur, Jammu and Kashmir. एंड इनाग्रेट किन्होंने किया था? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको इनाग्रेट किया था इन द चिनानी डिस्ट्रिक्ट इन द चिनानी विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन MOU, दैट इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ रोसाटॉम टू डेवलप ए थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है अब थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यहाँ पे डेवलप करने वाली है. अगर मैं बात करूँ बिहार से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट है रिगार्डिंग द न्यूक्लियर रिएक्टर्स. तो बिहार में द फर्स्ट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर दिस इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड एंड ओपनड इन नवादा. ठीक है, this question is important for those who are preparing for the AEDO examination. Next देखते हैं, which cooperative based ride hailing service was announced by the Union Minister of Cooperation? This is the Sahakar Taxi. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन कौन है? सो ये है अमित शाह, हु इज ऑल्सो द यूनियन होम मिनिस्टर. नेक्स्ट इज according to the directive by the Registrar General of India, what is now mandatory before the hospital discharge? So अब यहाँ पे ensuring birth certificates का issuance before the hospital discharge is very much important. As you know, election commission के regarding पे एक important update है कि SIR अभी करवाया था. ठीक है, SIR का full form है Special Intensive Revision. Okay. Next is, which state became the first to enact a law specifically aligning with the Transgenders Person Act 2019 for identity certificates? Okay. Now, this is the Delhi government. अब यहाँ पे important point ये है कि ट्रांसजेंडर्स को एज अ जेंडर का दर्जा यहाँ पे असम की गवर्नमेंट ने दिया है. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. इसके एडिशन में एक और अपडेट इम्पॉर्टेंट है कि असम ने बाथोइज्म को एक्सेप्ट किया है एज अ रिलीजन. ठीक है, तो असम के रिगार्डिंग ये दो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. एडिशनली अगर मैं बात करूँ तो डिब्रूगढ़ को अभी रिसेंटली बनाया गया है द सेकेंड कैपिटल ऑफ असम. ओके, सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है, ऑपरेशन महादेव वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस टू न्यूट्रलाइज द टेररिस्ट्स दैट वेर इन्वॉल्व्ड इन द अटैक एट पहलगाम. ठीक है, पहलगाम अटैक्स के अगेंस्ट ऑपरेशन महादेव था. एंड मैंने जो बताया था आपको ऑपरेशन शिवा, दिस वॉज अगेंस्ट दिस वॉज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द अमरनाथ यात्रा. अब मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें. Which Indian Army exercise focused on validating drone integration and center to shooter coordination in Arunachal Pradesh? And this is a very important question. ठीक है, करेक्ट आंसर है हमारा एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार.
अब आपको ये पता होना चाहिए, ड्रोन प्रहार वॉज कंडक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड ये इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाया था। वाई, क्यों कंडक्ट करवाया था? टू वैलिडेट ड्रोन इंटीग्रेशन इन बैटलफील्ड ऑपरेशंस। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च द 6th फास्ट पेट्रोल वेसल नेम्ड ICGS अटल। नाउ बनाया किसने था ICGS अटल को? सो दिस वाज मेड बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड इट इज द 6th फास्ट पेट्रोल वेसल इन द आत्म्या क्लास सीरीज। सो दीज आर द सीरीज जिसके बीच में, जिसके अंडर बहुत सारे वेसल्स को इंटीग्रेट किया जाता है, जैसे कावलरी सीरीज है, स्कॉर्पियन सीरीज होती है। सो इस तरीके से उसका नोमेनक्लेचर होता है। नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ अग्निशोध इनॉग्रेटेड एट IIT मद्रास इज द इंडियन आर्मीज न्यू रिसर्च सेल। ठीक है, रिसर्च सेल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन फॉर द CDS एंड द NDA एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ द एम इज टू कन्वर्ट द एकेडमिक इनोवेशंस इनटू द डिफेंस टेक्नोलॉजीज। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, विच बिल passed in 2024 repeals the Merchant Shipping Act 1958 to modernize the maritime governance. Very very important, and the name of this bill is the Merchant Shipping Bill 2024. अब ये आपसे पूछ सकते हैं कि मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 में जो पास किया गया, इसका प्रीडिसेसर कौन था? तो आपको पता होना चाहिए 1958 का एक्ट था वो। Next is Bharat Taxi, a 300 crore ride-hailing platform to rival Ola and Uber is an initiative of. Important है ये question. Okay, so this is an initiative of 8 major cooperatives like NCDC and IFCO. ठीक है, cooperatives का initiative है ये भारत टैक्सी, cooperatives का। अब cooperatives के बारे में बात करते हैं, तो cooperatives को भी constitutional status मिला है, ठीक है, बाय द 97th अमेंडमेंट एक्ट। एंड कोऑपरेटिव्स के बारे में ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू नो 97th अमेंडमेंट एक्ट। ओके, इफ्को के बारे में बात करें तो नैनो यूरिया लॉन्च किया था इफ्को ने, विच एम्ड टू रिड्यूस द ओवर यूज और मिस यूज ऑफ द यूरिया। नेक्स्ट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ which ancient Buddhist site was officially nominated by India for UNESCO World Heritage Status in 2025-2026 cycle? So this was Sarnath. Sarnath is in obviously UP. Sarnath के regarding आपको पता होना चाहिए, this place is related to Buddha also. How? क्योंकि first sermon बुद्धा ने सारनाथ में दिया था, which was also known as the धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ 100 गीगावाट कैपेसिटी इन विच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अंडर द ALMM। सो दिस इज अंडर द सोलर PV मॉड्यूल्स। ओके, सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। अब ALMM का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ द मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। नेक्स्ट इज new rules by the Ministry of Home Affairs allowed for the cancellation of overseas citizens of India, that is OCI status, if the holder is sentenced to the imprisonment of 2 years. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो इसको आप करंट अफेयर्स का पार्ट मान लो। स्टैटिक पोर्शन इसका हमारा पॉलिटी में कवर होता है। पॉलिटी में सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसके अंडर ये अपडेट है। ठीक है, अब क्या अपडेट है कि 2 years और मोर अगर इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस अनाउंस होती है तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का यहाँ पे स्टेटस कैंसिल हो सकता है। 2 years इम्प्रिजनमेंट के केस में है एंड 7 years और मोर में अगर पनिशमेंट मिली है तो। नेक्स्ट इज अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ इंडियाज फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम बिटवीन active railway tracks was commissioned at Banaras Locomotive Works, BLW. Next is which two state assigned an MOU to prepare a DPR, detailed project report, or the Yamuna water
पाइपलाइन प्रोजेक्ट। सो ये हरियाणा एंड राजस्थान ने प्रिपेयर किया है। ओके, एम क्या है? टू ट्रांसफर वाटर टू द ड्रोट प्रोन रीजन्स, जिस एरिया में वाटर ज़्यादा है वहाँ से वाटर को शिफ्ट किया जाएगा टू द ड्रोट प्रोन एरियाज। अगेन नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सवलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली रिवाइव्ड इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो ये सवलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, दिस इज ऑन द रिवर चिनाब। नाउ चिनाब के ऊपर दो डैम्स हैं जिनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है सलाल डैम, एक तो है बगलिहार डैम। अब वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज अभी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपने सुना होगा, व्हेन देयर वाज टसल गोइंग ऑन बिटवीन, देयर वर हायर टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया अनाउंस दैट इट वुड नॉट ओबे द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। अब इंडस वाटर ट्रीटी में क्या था? द इंफॉर्मेशन वाज गिवन अबाउट द यूज ऑफ द वाटर्स। ठीक है, इंडिया कौन से रिवर्स का वाटर यूज करेगा एंड पाकिस्तान कौन से रिवर्स का वाटर यूज करेगा। तो जो इंडस, चिनाब एंड झेलम है, इसके वाटर्स का जो राइट है दैट वाज गिवन टू पाकिस्तान। एंड जो बाकी की रिवर्स हैं दैट इज द रावी, ब्यास एंड सतलुज, इनके रिवर्स के वाटर का यूज इंडिया करेगा। बट जब इंडिया ने इस ट्रीटी को कैंसिल कर दिया तो इंडिया इज नाउ यूजिंग इंडस, चिनाब एंड झेलम, ये जितनी भी नदियां हैं 6 रिवर्स, सबको इंडिया यूटिलाइज करेगा। एंड पहले ये ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक, बट इंडिया ने अब इसको नहीं माना है, विच इज़ राइट ऑल्सो। हमारे पास, हमारे कंट्री में बहुत सा ऐसा एरिया है, गुजरात का, हरियाणा का, कुछ राजस्थान का पार्ट है, जहाँ पे हम इन रिवर्स के वाटर का फ्लो डाइवर्ट करके एंड वी विल यूज इट बाई आवर ओन। सलाल डैम, बगलिहार डैम दोनों हमारे चिनाब रिवर पे हैं। इंपॉर्टेंट है, नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नो, इंडिया अचीव द टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल E20 इन विच ईयर? नाउ टारगेट तो पहले का था, बाद में था, बट इंडिया ने इसको 2025 में ही अचीव कर लिया। टारगेट कब का था? 2030 का टारगेट था, बट इंडिया ने 2025 में अचीव कर लिया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, who conducted the first green ammonia auction in India with discovered price of 55.75 per kg? So Solar Energy Corporation of India, SECI ने conduct किया है first green ammonia auction, and these green ammonia is that ammonia that is produced by the renewable sources of energy. Renewable sources आपको पता होगा, by sun or that the resources that are cannot deplete. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? द रिसोर्सेज विच कैन डिप्लीट, जस्ट लाइक फॉसिल फ्यूल, कोल है, वुड है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, ऑल ऑफ दीज आर नॉन रिन्यूएबल। ठीक है ना। दिस ऑक्शन वॉज कंडक्टेड अंडर द फ्लैगशिप नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। Next is, which neighboring country officially joined the International Big Cat Alliance in August 2025? So अभी recently नेपाल ने officially join किया है International Big Cat Alliance को। अब IBCA के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। ठीक है। Next is, the government plans to create a nuclear liability fund to cover the compensation claims exceeding what amount? So 15,000 करोड़ के फंड्स अगर कंपनसेशन क्लेम को एक्सीड करता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज? सो दिस इज द DRDO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड DRDO ने अभी रुद्रास्त्र ड्रोन भी बनाया है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, इंडिया एंड भूटान अप्रूव द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक कनेक्टिंग कोकराझार टू घिलेफू। अब ये कोकराझार इज इन असम एंड घिलेफू इज इन भूटान। ओके,
सो दिस इज इट। ओके, अब एक रुद्रास्त्र याद रखना, एक रुद्रास्त्र मैं बताता हूँ आपको। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंडियन रेलवेज। दिस इज द लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन दैट इज एवर बीन रन बाय द that has been ever run by the Indian Railways. Okay. Now, which district in Chhattisgarh was declared India's first certified child marriage free district? So this was the Balod district of Chhattisgarh. This is important, very very important, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट है ये। ओके, next is the Reserve Bank of India set up the PRB under the Payment and Settlement System Act. What does PRB stand for? The PRB stands for Payments Regulatory Board. इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ये 2007 का एक्ट है, जिसके अंदर जितनी भी डिजिटल पेमेंट्स हैं इसको रेगुलेट करता है आरबीआई। जैसे आप पेमेंट्स, आप और हम पेमेंट करते हैं थ्रू फोन पे, पेटीएम एंड ऑल, तो इसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सीवियर वायलेंस एंड आर्सन erupted in 2025 अक्टूबर along the disputed border of which two states? तो असम एंड नागालैंड के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है, इन दी गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशनड ICGS अक्षर built by GRSE. What type of vessel is it? तो ये जो ICGS अक्षर है, दिस इज अ advanced offshore patrol vessel. Again, this is important, very very important. Now, the cabinet approved the nationwide celebration for the 150th anniversary of which iconic song? So this is the Vande Mataram. Vande Mataram has been composed by Bankim Chandra Chattopadhyay. Okay, very very important question hai. Next is, which three Indian ports were designated as the initial green hydrogen hubs? This question is very very important. So कौन से पोर्ट हैं? So this is the Kandla port in Gujarat, Paradip port in Odisha and Tuticorin in, okay, these are the initial green hydrogen hubs. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको, कहीं नोट कर लेना या जैसे भी इसको अपने नोट्स में ऐड करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Next is, what is the name of the AI-driven virtual minister appointed by Albania for the public procurement? ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, 110% आएगा। So this is Diela. Next is, which film was selected as India's official entry into the Oscars 2026? ये है Homebound. Very very important. Next है, who became the first mycologist to be appointed as the director of the Botanical Survey of India? Very very important, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछेंगे आपसे। तो द आंसर इज डॉक्टर कनद दास। ओके, अब अगर मैं आपको बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बताऊं, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1890। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। IMD के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो ये IMD है इसका 150th एनिवर्सरी इस साल सेलिब्रेट किया गया है। एंड बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर्स है कलकत्ता में। ऑन दी अदर हैंड IMD का हेडक्वार्टर किधर है? तो IMD का हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। ऐसे ही बात करते हैं अगर RBI के बारे में, RBI का हेडक्वार्टर्स है मुंबई। इंपॉर्टेंट है ये सारे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was appointed as the executive director of the IMF representing India's constituency in 2025? So executive director of IMF अपॉइंट किया गया है उर्जित पटेल को, and he has been appointed for a 3-year terms. Also Urjit Patel formerly was the governor of the RBI. So this question becomes important. Who became the first Indian to win the Mrs. Universe 2025 title? Correct answer is Sherry Singh. Next question है हमारा, which state inaugurated the Namo Biodiversity Park in Alwar to preserve the native flora? So Alwar is in Rajasthan. So ये राजस्थान में inaugurate हुआ है. Now in addition to that, I would like you
to mention two static points here. The first one is the term of biodiversity hotspot. Biodiversity hotspot. तो ये जो biodiversity hotspot है, इसकी definition for the first time, the term was given by Norman Mayers. And एक term आता है ecosystem. तो ecosystem term पहली बार propound किया था टैंसली ने. अगर मैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात करूं तो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटीज हॉटस्पॉट हैं. कौन कौन से हैं आप मुझे बताना. एक मैं आपको बता देता हूं, दिस इज वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, सो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फुल्ली फंडेड सेंट्रल सेक्टर टैक्स रैम्प्स स्कीम. तो ये जो रैम्प्स स्कीम है, दिस इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. ठीक है, टैक्स है आगे तो वहां से आप डिराइव कर सकते हो कि दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. आई होप कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द पेलोड कैपेसिटी ऑफ द स्काईरूट्स फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 फॉर अ 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट एट अ 45 डिग्री इंक्लिनेशन. अब यहाँ पे 2 से 3 MCQs इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एडेड है. सबसे पहला तो फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट बाय स्काईरूट इज विक्रम. दूसरा, इसकी पेलोड कैपेसिटी इज 480 kg एंड इसको प्लेस किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में. ओके, नेक्स्ट है, टू विच कंट्री हैज इंडिया री इलेक्टेड टू द काउंसिल फॉर द 2026-27 टर्म विद द हाईएस्ट वोट टैली. तो इंडिया को री इलेक्ट किया गया है इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. यूनेस्को की मैं बात करूं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर इज इन पेरिस. ओके, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है लंदन में. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर्स है कहाँ, तो इंडिया में, न्यू दिल्ली में. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज, द 26th edition of the Hornbill Festival began at which specific venue in Nagaland? So Naga Heritage Village in Kisama. यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है. एक और फेस्टिवल है, दिस इज शिरुई लिली फेस्टिवल. ये भी इंपॉर्टेंट है इस साल. सो ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इस फेस्टिवल के बारे में भी. Next question is, under the Central Exercise Amendment Bill 2025, the duty on smoking mixtures for pipeline and cigarettes is proposed to increase to 325%. 325% तक यहाँ पे एक्सरसाइज ड्यूटी इंक्रीज किया जाने वाला है ऑन स्मोकिंग मिक्सचर्स फॉर पाइपलाइन एंड सिगरेट. नेक्स्ट है, विच टर्म हैज बीन चूजन as the Oxford Dictionary's word of the year 2025. very important question. So this is rage bait. rage bait का क्या मतलब होता है कि किसी भी वीडियो को रेज को क्रिएट या एंगर को क्रिएट करने के लिए, रेज को इंस्टिगेट करने के लिए बनाया जाता है. तो दिस इज नोन एज द रेज बेट. नेक्स्ट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको आप स्टैटिक में भी कंसिडर कर सकते हो, बट बिकॉज ये अभी न्यूज में है, सो इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड विच रिसेंटली अचीव द नवरत्न स्टेटस is situated in which district of Assam? So this is situated in the Golaghat district. आपके लिए डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सिचुएटेड है असम में. नेक्स्ट इज, द PM-G1 योजना focused on the advanced biofuel projects is implemented by which agency? very important. So this PM-G1 योजना is implemented by the Center for High Technology. अब ये जो है इट इज फोकस्ड ऑन द बायोफ्यूल्स. नेक्स्ट अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ व्हाट डज द रीलॉस एग्रीमेंट रिसेंटली रेटिफाइड बाय रशिया फैसिलिटेट्स बिटवीन इंडिया एंड रशिया? रिसेंटली अभी दिसंबर मंथ में हमने देखा था कि द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विजिटेड इंडिया. सो दिस रीलॉस एग्रीमेंट इज associated with the reciprocal exchange of military logistics. It means that इंडिया को जब भी ज़रूरत पड़ेगी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज करेगा रशिया के साथ, एंड रशिया भी सेम करेगा इंडिया के साथ. सो
जियोपॉलिटिकल लेवल में इट प्लेज अ वेरी मच हाई इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज इंडिया की जो भी ऑफशोर्स, इंडिया के बाहर के जो भी बेसेस हैं उसको रशिया यूज़ कर सकता है, एंड इंडिया भी ऑन द कॉन्ट्रेरी रशिया के बेसिस को यूज़ कर सकता है. So this is important. Next is, what is the core concept of the proposed Dhruva digital address system for India? So this is the address as a service. ठीक है. Next है, under the right to disconnect bill 2025, companies violating the provisions can be penalized up to what percentage of total employee remuneration? तो 1%. Next is, the Export Promotion Mission EPM approved in late 2025 has a financial outlay of around 25,060 crore rupees. Now, what is the theme of the 11th International Science Festival held in Panchkula? अभी दो क्वेश्चंस यहाँ से आपके सॉल्व होंगे. पहला तो 11th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ था? ये अभी रिसेंटली पंचकुला में कंडक्ट हुआ था. Second is about the theme of the 11th International Science Festival. So the theme was विज्ञान से समृद्धि for आत्मनिर्भर भारत. ठीक है. आत्मनिर्भर भारत से पहले एक मेक इन इंडिया आया था. मेक इन इंडिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? 2014 में लॉन्च हुआ था. नेक्स्ट इज, यस, how many big cat species are covered under the global cooperation through the International Big Cat Alliance? Very very important question. तो 7 cat species including puma. ठीक है, पूमा भी इसमें इंक्लूडेड है. 7 कैटेगरीज कौन कौन सी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ओके. नेक्स्ट है हमारा, which Indian festival was inscribed on the UNESCO representative list of the intangible culture heritage of humanity in December 2025? Very very important question. ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है. So this is the दीपावली. दीपावली को इंक्लूड किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी. इसके पहले इंटेंजिबल कल्चर में इंक्लूड किया गया था गरबा को. नेक्स्ट इज, according to the World Inequality Report of 2025, the top 1% in India holds what percentage of the total national wealth? 40%. एंड ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के डेटा को अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे मेंस में कोट कर सकते हो, इन द जेंडर गैप में भी कोट कर सकते हो. ठीक है, या प्रॉब्लम्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर, एंड इस वाले टॉपिक में भी इंक्लूड कर सकते हो कि हाउ दिस money divide is there, that top 1% of Indians hold 40% of the national wealth. Next is again and very important, very very important question. ये है, the glow Cas9, a bioluminescent Cas9 enzyme that emits light while editing DNA, was engineered in which institute? Very very important question. ये इंजीनियर किया है बोस इंस्टीट्यूट कैलकाटा ने. नेक्स्ट है, where was India's first fully indigenous hydrogen fuel cell passenger vessel launched in December 2025? ये वाराणसी में लॉन्च हुआ है. नेक्स्ट है, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The Shanti Bill approved by the Union Cabinet aims to create a legal framework for the nuclear and the atomic energy sector. Very very important question. ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, 110% पूछेंगे. नेक्स्ट है, द विकसित भारत जी राम जी बिल ऑफ 2025 proposes to replace which existing act? So मनरेगा एक्ट ऑफ 2025 को दिस एक्ट इज गोइंग टू रिप्लेस. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 में आया था. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था. Now who was administered the oath of the office as a Chief Information Commissioner? This is again very very important. So this is Rajkumar Goyal has become the Chief Information Commissioner of India. Next is, following the designation of Silishehar Lake and Kopra Jalashay, what is now the total number of Ramsar sites in India? As of दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो 96 साइट्स हो गई हैं इंडिया में. ना कोपरा जलाशय एंड सिलीसर लेक ये कौन से स्टेट में हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना.
Next is, what is the name of India's fully indigenous 64-bit dual-core microprocessor developed by CDAC? Very very important. This is Dhruv 64. आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ध्रुव 64 क्या है? So this is a microprocessor that has been developed by CDAC. Next है, PM Modi was recently conferred with the highest award of Ethiopia. What is the name of the honor? So the name of the highest award of Ethiopia is the Great Honor Nishan of Ethiopia. इसके एडिशनल में मैं कुछ अवार्ड्स आपको बता रहा हूँ जो कि नरेंद्र मोदी को मिले हैं. द फर्स्ट वन इज द सदर्न क्रॉस. ये दिस बिलोंग्स टू ब्राज़ील. इसके आगे भी बहुत लंबा सा टाइटल है, वो जानने की ज़रूरत नहीं है. सदर्न क्रॉस याद रखना, दिस इज ऑफ ब्राज़ील. एंड सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, दिस इज ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रशिया. नाउ मकारियोस 3 सिप्रस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है. ओके. एंड द मोस्ट एंशियंट ऑफ वेलविसिया मिरालबेस, दिस इज ऑफ नमीबिया. सो ये कुछ अवार्ड्स आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं. बाकी ये सारा कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे इन दी अवार्ड्स वाले सेक्शन में. सो डोंट वरी, यहाँ पे मैंने अभी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करवाया है. नेक्स्ट इज, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी इज सेट टू बी स्टैब्लिश्ड ऑन 125 एकड़ कैंपस इन विच सिटी? सो ये गोरखपुर में स्टैब्लिश होगा. ठीक है. गोरखपुर में नॉर्दर्न इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट भी स्टैब्लिश होने वाला है. सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. नॉर्थ इंडिया का मैंने बोला है, सो ये ध्यान में रखना, आप कंफ्यूज मत होना. नेक्स्ट इज, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वायरलेस रेल कॉन्वॉय सिस्टम यूजिंग द सिंक्रोनाइज्ड हेवी फ्रेट ट्रेन्स? इंपॉर्टेंट है. दिस हैज बीन टेस्टेड बाय चाइना. नेक्स्ट है हमारा, The PM Modi was awarded the first class of the Order of Oman in December 2025. This marks his 29th on international honor. तो क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि अभी तक PM मोदी को कितने अवार्ड्स मिले हैं. सो 29 अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं एज ऑफ दिसंबर 2025. सो दिस क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है, the Indian Navy commissioned its second MH-60R Seahawk helicopter squadron INAS 335, which has been nicknamed as Auspidus. Very very important question, पूछ सकते हैं एग्जाम में. Okay, the MH-60R Seahawk helicopter has been named as Ospreys. Next is, Russia's most advanced long-range air defense, in which India has expressed its interest, okay, is the S-500 Prometei. Okay, and last question of today is, which bank continues to be listed as the domestically systematic important bank DSIB in the RBI's 2025 list? So ये 3 बैंक हमारे हैं, SBI बैंक, HDFC एंड दी ICICI बैंक. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. DSIB की मैं बात करूं, सो दीज आर कॉल्ड दैट दीज आर टू बिग टू फेल. मतलब इतने ज़्यादा लार्ज स्केल में ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं कि दीज कैन नॉट फेल, टू बिग टू फेल. एंड इसका एक जनरल जो फैक्ट है दैट इज कि ये जो बैंक्स है ना, इंडिविजुअली ईच बैंक कॉन्स्टिट्यूट्स एटलीस्ट 2% ऑफ द इंडियाज GDP. 2% से ज़्यादा ही होते हैं ये डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक. एंड इसकी लिस्ट जो है, दिस इज रिलीज्ड बाय द RBI. सो विद दिस वी आर डन विद द 180 क्वेश्चंस ऑफ द नेशनल अफेयर्स. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग.